السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ آؤ بیٹھو، وہ اسے نرم لہجے میں بیڈ پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ حیا کو اس کے لہجے کی نرمی پر حیرت کا جھٹکا لگا، تاہم وہ بیڈ کے کنارے تک گئی۔ وہ بھی اس کے قریب بیٹھ گیا، اتنا قریب کہ حیا نے غیر محسوس انداز میں دور سے رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ غافل نہیں تھا۔ اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ممی کو پوتی پوتے دیکھنے کی خواہش ہے اور میں ممی کی اس خواہش کو رد نہیں کر سکتا۔ ہمارے بیچ جیسا رشتہ صحیح، ممی کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تمہیں مجھ سے تعاون کرنا پڑے گا، وہ نارمل لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر حیا حق کو دک رہ گئی۔ ولید حسن نے اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ نائٹ بلب آن کرتے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے گئی۔ تکیے پر سر رکھے وہ اس کی گردن پر جھکا تو حیا نے، وہ سرخ لہنگے میں دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی ہوئی بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ دل آنے والے لمحات کے خیال سے لرز رہا تھا۔ کانوں میں احمر بھائی کی بیوی صنم بھابی کے شوخ فکرے گونج رہے تھے جو انہوں نے رخصتی کے وقت کہے تھے۔ حیا، ڈی ایس پی صاحب کی تو آج خیر نہیں، نہ جانے تمہارے اس حسن کی تاب لا سکیں گے بھی یا نہیں۔ یہ سب سوچتے شرم و حیا سے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھی۔ وہ خود کو کمپوز کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ نہ جانے کتنا وقت بیت گیا تھا، بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تھی جب اچانک دروازہ کھلا اور حیا کا دل شرم و حیا اور خوف کے ملے جلے احساس سے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ آنے والا بیڈ کی طرف آنے کی بجائے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر جو غالباً ڈریسنگ روم تھا اس میں چلا گیا۔ حیا نے حیرت سے گھونگھٹ کی اوٹ سے دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر گھونگھٹ پلٹ دیا اور بیڈ سے اتر آئی۔ اب اس میں مزید اس پوزیشن میں بیٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور ایک ایک کر کے اپنا زیور اتارنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا۔ حیا کا دل ایک بار پھر سے زور سے دھڑکا۔ آئینے میں جو ہی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ہاتھ میں پکڑا جھمکا ڈریسنگ ٹیبل پر جا گرا تھا۔ وہ حیرت اور خوف کی زیادتی سے ایسے منجمد ہوئی کہ پلٹ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ کر سکی، کیونکہ آئینے میں نظر آتا شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی پولیس آفیسر تھا جس نے انہیں لاک اپ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ وہ چلتا ہوا حیا کے قریب آیا۔ حیا کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ وہ پلٹی نہیں مگر آئینے میں اس کے سر تاثرات دیکھ سکتی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت ہینڈسم تھا، مگر اس کے خوبصورت نقوش پر سختی اور سرد مہری تھی۔ شکل سے تو بہت معصوم دکھتی ہو، لیکن ہو کرمنل۔ اگر مجھے نکاح سے پہلے پتہ چل جاتا تو آج تمہیں یہاں نہ دیکھنا پڑتا۔ ولید حسن کی سرد آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو وہ تڑپ کر پلٹی۔ میں کرمنل نہیں ہوں، میرا ان لوگوں سے اور ان کے کام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ وہ تو میں، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ولید حسن نے درستگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ صفائی دینے کی ضرورت نہیں، سب کچھ جانتا ہوں میں۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، ممی ہارٹ پیشنٹ ہے۔ اگر تم نے انہیں کوئی بھی بات بتائی تو اپنی زندگی کے دن گن لینا۔ جس کیس سے رہا ہوئی ہو اسی کیس میں دوبارہ اندر ہوگی، سمجھی؟ اور اب نکلو میرے کمرے سے۔ آخر میں اس کا لہجہ حقارت بھرا تھا۔ حیا نے ڈبڈبائی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سرخ بنارسی لہنگے چولی میں ملبوس، جس کا آگے پیچھے کا گلا کافی گہرا تھا، کندھے پر جھولتے دوپٹے کو وہ بمشکل تھامے اپنے وجود کی تمام تر دلکشی کے ساتھ اس کے سامنے ہراساں چہرے کے ساتھ کھڑی تھی، جسے کوئی سزا سنائے جانے والی ہو۔ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو اتنا بھرپور حسن دیکھ کر کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ ولید حسن تھا، سخت و سرد مزاج، جس نے اس حسن کی مورت پر ایک غلط نگاہ ڈالے بنا اسے تنفر سے کمرے سے نکلنے کو کہا۔ لیکن میں کہاں جاؤں گی؟ چہرے کی طرح اس کے لہجے میں بھی ہراس تھا۔ یہاں پر اور بھی بہت سے کمرے ہیں، کسی میں بھی چلے جاؤ، بٹ میرے کمرے سے نکلو، کیونکہ میں تمہیں برداشت نہیں کر سکتا، سمجھی؟ اس سے زیادہ مزید بے عزت ہونا وہ نہیں سہ سکتی تھی، اسی لیے لہنگا سنبھالتی اس کے کمرے سے نکل آئی۔ سامنے نیچے جانے والی سیڑھیاں تھیں،
कुछ देर कबल वो 2 औरतों की हमराही में यही सीढ़ियां चढ़कर वलीद हसन के कमरे में आई थी, जहां से अब उसे निकाला गया था। आंखों में मोतियों की तरह आंसू गिर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए। वलीद की मम्मी यकीनन नीचे अपने कमरे में थी। वो नीचे नहीं जा सकती थी, इसीलिए वलीद हसन के कमरे के साथ वाले कमरे के दरवाजे को खोलना चाहा, मगर वो लॉक था शायद। सामने एक और कमरा था, उसका हैंडल घुमाया तो वो खुशकिस्मती से खुल गया। ये भी बेडरूम था। दरवाज़ा बंद करके उसके साथ टेक लगाकर वो रोने लगी। 6 साल पहले सारा ने अपनी मर्जी से वालिदैन के खिलाफ जाकर फहद से शादी की थी। कुछ अरसा तो वालिदैन नाराज़ रहे, लेकिन फिर बेटी को माफ़ कर दिया। फिर यके बाद दीगरे वालिदैन की वफ़ात के बाद सारा अपनी छोटी बहन हया को अपने घर ले आई थी, क्योंकि और कोई करीबी रिश्तेदार नहीं था जो हया को रखता। घर में उसके शौहर फहद के अलावा फहद की माँ भी रहती थी, जो एक बहुत ही तेज़ तरार और झगड़ालू औरत थी। हया जो ये समझती थी कि फहद भाई सारा आपी को बहुत खुश रखते होंगे, यहाँ आकर उसे अंदाज़ा हुआ। सारा आपी ने खसारे का सौदा किया था। फहद की मोहब्बत शादी के इब्तदाई महीनों में ही उतर चुकी थी। वो मुकम्मल अपनी माँ के कंट्रोल में था। माँ बेटे ने सारा को घर में नौकरानी बना कर रखा हुआ था। चूँकि फहद से शादी सारा का अपना फैसला था, इसलिए वो चुपचाप अब अपनी गलती को भुगत रही थी। शादी को 4 साल हो चुके थे और अब तक बच्चा भी नहीं हुआ था। दोनों माँ बेटा सारा को बांझपन के ताने भी देने लगे। हया मैट्रिक कर चुकी थी। सारा आपी ने उसका कॉलेज में एडमिशन करवा दिया, जिसकी फहद और उसकी माँ ने मुखालफत की थी कि आगे पढ़कर क्या करेगी। मगर सारा बहन के मामले में शौहर और सास के सामने डट कर खड़ी हो गई कि ये मेरी बहन का मामला है, इसकी पढ़ाई का खर्चा मेरे माँ बाप की सेविंग में से जाएगा, आप लोगों को क्या मसला है। तो तब जाकर माँ बेटा खामोश हुए। हया को एक बात बहुत अजीब लगती थी, सारा आपी उसका हद से ज़्यादा ख्याल रखती थी। घर में वो होती तो एक लम्हे के लिए भी उसे अपनी निगाह से ओझल ना होने देती, जैसे माँ अपने बच्चे पर नज़र रखती है। हर पल हर लम्हा वैसे ही वो हया पर नज़र रखती थी। अगर हया थोड़ी देर के लिए अकेली छत पर या सहन में बैठ जाती तो सारा आपी फ़ौरन आ जाती, जैसे हया को अकेला छोड़ने में उन्हें कोई मसला हो। रात को उसे रोज़ दरवाज़ा बंद करने की तलकीन करती। आधी रात को उठ उठ कर उसके कमरे के बाहर देखने आती। हया ने कई बार उन्हें खिड़की से देखा। इसे उनका अपने लिए इतना पॉजेसिव होना और वहमी होना अजीब लगता था। वजह भी समझ नहीं आती थी। हया उससे वजह पूछती मगर वो टाल देती, लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया तो धीरे धीरे उसे वजह समझ में आती गई, और वो वजह थी फहद भाई। उसने कई बार महसूस किया सारा आपी की मौजूदगी में फहद भाई की नज़रें और लहजा आम होता था, लेकिन जो ही सारा आपी किसी काम से किचन में या अपने कमरे में जाती तो फहद भाई की वही नज़रें और लहजा बदल जाता। वो इससे बिला वजह बात करने की कोशिश करते, कमरे में दाखिल होते वक्त दस्तक देना भूल जाते या भूलने की एक्टिंग करते, और फिर ऐसी नज़रें डाल देते जो हया को शर्मिंदा कर देती। पहले पहल हया को लगा कि शायद उसका वहम है, फहद भाई ऐसे नहीं है, मगर जब सारा आपी का उनकी मौजूदगी में अपने लिए मोहतात और चौकस अंदाज नोट किया तो ठुठक गई। ये उसका वहम नहीं था। फहद भाई जिसके लिए वो सगे भाइयों वाली फीलिंग्स रखती थी, वो दर हकीकत एक बदनीयत इंसान था। ये एहसास होते ही हया मोहतात हो गई। फहद भाई के साथ तन्हा होने से बचती, उनसे नज़रें मिलाकर बात करने से गुरेज करती, और सारा आपी की हर हिदायत पर अमल करती। वक्त गुजरता गया। उसने FSC मुकम्मल कर ली। पढ़ाई में वो हमेशा से अच्छी रही थी। BS के लिए उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का इरादा किया, और एक दिन सारा आपी से कहा, आपी मैं हॉस्टल शिफ्ट होना चाहती हूँ। सारा आपी चौंक गई, कुछ पल चुप रही और फिर नरमी से कहा, ठीक है हया, अगर तुम्हें हॉस्टल जाना बेहतर लगता है तो तुम जाओ, लेकिन वहाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी, तुम्हें अपनी हिफाजत खुद करनी होगी। फिर सारा आपी की इजाज़त लेने के बाद वो एक वुमेन हॉस्टल में शिफ्ट हो गई और साथ ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, मगर रेगुलर बेसिस पर क्लासेस के लिए नहीं जाती, क्योंकि अपने अखराजात पूरे करने के लिए उसे जॉब चाहिए थी। उसकी रूममेट जो किसी बुटीक में काम करती थी, वो हया को अपनी बुटीक में नौकरी दिलवाने की ऑफ़र करने लगी।
हया ने खुशी खुशी हाँ कर दी। बुटीक का माहौल बज़ाहिर बहुत अच्छा था। हया को हाफ सैलरी एडवांस में मिली थी। वो बहुत खुश थी, मगर उसे नहीं पता था वो बुटीक दरअसल लड़कियों के लिए एक धंधे का अड्डा था, जहाँ जो भी लड़की आती पहले उसे मराआत देकर और थोड़ा बहुत बुटीक का काम करवाकर उसका एतबार हासिल करते और फिर किसी दिन नशा देकर उसकी नाजेबा वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करके धंधे पर मजबूर किया जाता। सब लड़कियां उनके हाथों कठपुतलियां बनी हुई थी। हया को वहां नौकरी करते 1 हफ्ता हुआ था जब एक दिन अचानक वहां पुलिस आई और बुटीक के अमले के साथ साथ तमाम लड़कियों को भी अरेस्ट कर लिया गया, जिनमें हैरान परेशान हया भी शामिल थी। थाने में उन्हें डीएसपी वलीद हसन के सामने पेश किया गया, जिसने उन्हें लॉकअप में डालने का हुक्म दिया। एक रात हया ने उन सब लड़कियों के साथ लॉकअप में गुजारी और तमाम रात रोती रही। सुबह एक करख्त लेडी कांस्टेबल ने तमाम लड़कियों से तफ्तीश की और सबके घर वालों को बुलाकर उनके हवाले कर दिया गया। हया ने सारा आपी को कॉल की थी, जो ये सुनकर सख्त परेशान हुई। अगर उनके शौहर और सास को पता चल जाता तो वो हंगामा मचा देते। हया को भी कभी अपने घर में कदम ना रखने देते, क्योंकि उसके हॉस्टल जाने की फहद ने मुखालफत की थी और सारा जानती थी कि वो किस लिए मुखालफत कर रहा था। सारा ने फहद के कज़न अहमर को फ़ोन किया। अहमर और उसकी फैमिली से वो चंद बार मिल चुकी थी। वो बहुत अच्छे लोग थे। फहद और उसकी माँ से मेल नहीं खाते थे। अहमर जाकर हया को पुलिस स्टेशन से लेकर सीधा अपने घर आया। सारा बाजार के बहाने अहमर के घर गई और वहाँ अहमर की माँ सरवत आंटी को रो रो कर अपने मसाइल बताए कि वो हया को अपने साथ नहीं रख सकती, वहाँ पर वो महफूज नहीं होगी, इसलिए आप इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ दें। सरवत आंटी खुद भी फहद की माँ की नेचर और फहद की हरकतों से आगाह थी। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि फहद अपनी साली पर बुरी नज़र रखता होगा, इसलिए उन्होंने सारा से कहा, बेफिक्र रहो हया, मेरे पास तब तक रहेगी जब तक मैं कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ कर इसकी शादी नहीं कर देती। फिर सरवत आंटी को किसी रिश्ते वाली औरत के ज़रिए ऐसे लड़के का रिश्ता मिला जो अमीर कबीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और पुलिस में था। उन्हें लगा भला इतने अमीर कबीर लोग क्यों मिडिल क्लास लड़की को बहू बनाएंगे, मगर जब रिश्ते वाली हया की फ़ोटो लेकर गई तो लड़के की माँ ने हया को फ़ौरन पसंद कर लिया और फिर सरवत आंटी ने फ़ौरन सारा को कॉल कर दी। चट मंगनी पट ब्याह हुआ। फहद और उसकी माँ को पता चला तो दिल मिलाते रहे, मगर सारा ने किसी की परवाह नहीं की। हया को खुद सारी तसल्लियाँ दी गई और वो खामोश रही, क्योंकि बुटीक वाले वाक़े के बाद वो इतनी डरी हुई थी कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसे शादी के अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। शादी की तकरीब एक हॉल में हुई जिसमें मुख्तसर लोग थे। हया को निकाह के बाद वलीद हसन के पहलू में स्टेज पर बिठा दिया गया। वलीद हसन ने उसकी तरफ देखा या नहीं वो नहीं जानती, लेकिन हया ने नज़र उठाकर भी उसकी तरफ नहीं देखा। लेकिन अब उसे अंदाज़ा हो रहा था कि स्टेज पर जब उसके पहलू में इसे बिठाया गया था तो वलीद हसन इसे देखकर पहचान गया था। इसीलिए जब हया ने उसे कमरे में देखा तो जिस तरह हैरत का झटका इसे लगा वैसा वलीद हसन को नहीं लगा था। उसके चेहरे पर सिर्फ गुस्सा और सर तासुरात थे, जिससे साफ जाहिर था कि वो कमरे में आने से पहले ही आगाह हो चुका था। सारी रात वो बेड से टेक लगाए कारपेट पर घुटनों में सर दिए बैठी रही। सुबह की अजान के साथ अपने अकड़ते हुए वजूद को बमुश्किल संभालते उठी और बाथरूम में चली गई। मुंह हाथ धोकर बाहर आई। समझ नहीं आ रहा था अब कपड़े लेने उसके कमरे में जाए या नहीं। कुछ देर सोफे पर बैठी फैसला करती रही कि जाए या नहीं, क्योंकि कुछ देर में मुकम्मल सुबह हो जाती और फिर नाश्ते के लिए नीचे जाना पड़ता। ऐसे में वो इन्हीं कपड़ों के साथ तो नहीं जा सकती थी, इसलिए हिम्मत मुजतमा करते वो वलीद हसन के कमरे में चली आई। वो बेखबर सुकून से सो रहा था। हया ने लब भींचकर तन अखियों से उसकी तरफ देखा और बेआवाज़ अलमारी खोलकर अपना ड्रेस निकालते वापस उसी कमरे में आ गई। चेंज करने के बाद अगरचा नींद आ रही थी, मगर सोई नहीं कि कहीं टाइम ज़्यादा ना गुजर जाए, वलीद की मम्मी या बुआ ऊपर आ जाएं और उसे इस कमरे में देखकर सवाल करें। इसीलिए वो जागती रही। जैसे ही 7 बजे वो नीचे आ गई। बुआ नाश्ता लगा रही थी। उसे देखकर मोहब्बत भरे लहजे में बोली, आओ बेटा, आपा तुम्हारा और वलीद का ही इंतज़ार कर रही हैं। वलीद नहीं उठा क्या? बताने के साथ उन्होंने सवाल भी कर दिया। हया ने इस बात में सर हिलाया। वो उसे लेकर नफीसा बेगम के रूम में आई, जो वलीद की मम्मी थी।
نفیسہ بیگم جو لیٹی ہوئی تھی اسے دیکھ کر اٹھ گئی۔ حیا کے سلام کے جواب میں اس کی پیشانی چومتے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور چھوٹے چھوٹے سوال کرتے کرتے اچانک پوچھا، ولید کیسا لگا تمہیں؟ حیا نے بمشکل ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہ اچھے ہیں۔ تو نفیسہ بیگم مطمئن ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں بوا نے ناشتہ لگنے کی اطلاع دی تو وہ حیا کو لیے ٹیبل پر آ گئی۔ ولید حسن بھی وہاں موجود تھا۔ حیا کی غیر ارادی طور پر اس کی طرف نگاہ اٹھی تھی۔ اسی پل ولید حسن نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہ میں جو سرد پن تھا، حیا نے فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ حیا اسی کمرے میں بیڈ پر بیٹھی تھی جہاں پہلی رات ولید حسن کے نکالنے پر اس نے پناہ لی تھی۔ شادی کو 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ ان 10 دنوں میں ولید حسن اس سے تنہائی میں دوبارہ مخاطب نہیں ہوا۔ کبھی کبھار ناشتے یا کھانے کی ٹیبل پر ممی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو تھوڑا بہت مخاطب کر لیتے تھے، ورنہ ولید حسن کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت اور تنفر اسے صاف نظر آتا تھا۔ وہ الگ الگ کمرے میں رہتے۔ نفیسہ بیگم جوڑوں کی مریضہ تھی اور بوا بوڑھی، اسی لیے وہ دونوں سیڑھیاں چڑھنے سے قاصر تھی اور ان کے الگ کمروں میں سونے کی بات کسی کو پتہ نہ چل سکی۔ روز وہ دیر تک نفیسہ بیگم، جنہیں وہ ممی کہتی تھی، ان سے اور بوا سے باتیں کرنے کے بعد لیٹ نائٹ اوپر آتی۔ ولید حسن کے کمرے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی اور وہ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیتی اور صبح سویرے نماز پڑھنے کے بعد نیچے چلی جاتی، لان میں ٹہلتی اور پھر نفیسہ بیگم کے لیے چائے بنا کر ان کے پاس پہنچ جاتی۔ سارا آپی اسے بے حد یاد آتی تھی، سوائے فون پر 2-3 مرتبہ بات کے وہ 1 مہینے سے ان سے نہیں ملی تھی۔ ایک دن اچانک وہ آ گئی۔ نہ صرف وہ تھی بلکہ ان کی ساس اور شوہر بھی تھے۔ ولید بھی اس دن گھر پر تھا۔ ماں کے بلانے پر وہ ڈرائنگ روم میں آ کر ان سے ملا۔ سارا آپی نے تو صرف ولید کو سلام کیا تھا، مگر وہ دونوں ماں بیٹا نفیسہ بیگم اور ولید کی اتنی خوشامد کر رہے تھے کہ دونوں بہنیں دن میں شرمندگی محسوس کر رہی تھیں۔ ایک دن وہ دوپہر کے کھانے کے بعد بور ہو رہی تھی تو کمرے سے نکل آئی اور یوں ہی ٹہلتے ہوئے اس لائبریری کے دروازے پر آ گئی جو ولید حسن کے کمرے کے ساتھ واقع تھی۔ ولید ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا، اس لیے حیا بے فکری سے دروازہ دھکیل کر اندر چلی آئی۔ اندر تو ایک اور ہی دنیا تھی۔ شیشے کی الماریوں میں کرینے سے سجی کتابیں۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے وہ ایک ریک کے سامنے جا کر ان کتابوں کے سرورق پر نظر دوڑانے لگی۔ ایک اردو ناول نکال کر وہیں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سامنے میز پر ایک نیلے رنگ کی فائل رکھی ہوئی تھی، جسے سائڈ پر کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا، مگر پھر لاشعوری طور پر فائل کھول لی۔ چند پیجز پلٹے ہی تھے کہ اچانک زور سے دروازہ کھلا اور ولید حسن اندر داخل ہوا۔ جہاں اسے بے وقت وہاں دیکھ کر حیا چونکی تھی، وہاں وہ بھی اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر اور خاص طور پر اس کے ہاتھ میں وہ فائل دیکھ کر بری طرح ٹھٹکا تھا۔ اس نے گھبرا کر فائل بند کی اور ہاتھ سے میز پر رکھنے ہی لگی تھی کہ ولید کی سرد پتھریلی آواز کمرے میں گونجی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حیا قدرے گھبرا گئی، پھر ہکلاتے ہوئے مدھم سی آواز میں بولی، میں یہ کتاب دیکھ رہی تھی۔ مگر ولید حسن کا چہرہ سخت اور آنکھیں شعلہ بار تھی۔ اس نے فائل کی طرف دیکھا اور غصے سے دھاڑا، جھوٹ مت بولو، تم یہ فائل چرانے آئی ہو نا؟ کس کے کہنے پر؟ بولو۔ انگلی سے فائلز کی طرف اشارہ کرتے وہ غصے سے دھاڑا۔ حیا کا چہرہ اس الزام پر فک ہو گیا۔ نہیں تو میں تو صرف یہ۔ اس نے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر ولید حسن نے انتہائی درستگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ جسٹ شٹ اپ۔ وہ اتنی اونچی آواز میں غرایا کہ پورے کمرے میں گونج سنائی دی۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ خونخوار تیوروں کے ساتھ وہ اچانک اس کے بالکل ہی قریب آ گیا تھا۔ حیا مزید گھبرائی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش میں کرسی سے ٹکرا گئی۔ ولید حسن نے جھک کر اس کے شانے سختی سے دبوچ لیے۔ سچ سچ بتاؤ، کس کے کہنے پر آئی ہو؟ یہ فائل تمہیں کس نے چرانے کو کہا ہے؟ سچ بولو گی تو سزا میں رعایت ملے گی۔ اس کا لہجے میں شک اور غصے کی آگ سے دہک رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بے بسی سے ولید حسن کے پتھریلے سرد تاثرات والے چہرے کو دیکھ کر بمشکل نفی میں سر ہلایا، کیونکہ الفاظ حلق سے نکلنے سے ہی انکاری ہو گئے تھے۔ آنکھوں سے گزرنے والا ایک آنسو اس کے گال کو تر کرتے نیچے لڑک گیا۔ ولید حسن کی اس کے شانوں پر گرفت ایک لمحے کے لیے ڈھیلی پڑی۔
उसके आंसुओं से दिल पिघलने लगा था, मगर फिर उसने फौरन खुद को संभाला। ड्रामा मत करो, मैं इन आंसुओं से नहीं पिघलने वाला। तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ़ बना लोगी? आपको गलतफहमी हुई है। मैं किसी गलत मकसद से यहाँ नहीं आई, सिर्फ बुक्स देखने आई थी, उसने भराई अंदाज में कहते अपने कंधों से उसके हाथ हटाने चाहे। वलीद हसन तनफ्फुर से सर झटकता खुद ही पीछे हो गया। हया तेज़ी से उसके पहलू से निकली और लाइब्रेरी से बाहर आ गई। आंखों से अब भी मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो वलीद हसन के लिए इतनी नाकाबिले एतबार थी कि वो उस पर फाइल चोरी करने का इल्ज़ाम लगा रहा था। अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके वो देर तक आंसू बहाते लाइब्रेरी में जाने पर पछताती रही। रात को डिनर पर वो सर दर्द का बहाना करके नहीं गई, क्योंकि वो वलीद हसन का सामना नहीं करना चाहती थी। दिल इतना हर्ट था कि उसको देखने पर आमादा नहीं था, इसीलिए वो कमरे में लेटी रही। मगर वलीद हसन दंदनाता हुआ उसके सर पर पहुंच गया। डिनर पर ना आकर यहाँ इतनी जल्दी कमरे में लेटकर तुम क्या करना चाह रही हो? मम्मी को पता लगवाना चाह रही हो कि हम अलग अलग कमरों में रहते हैं? वो इंतहाई गुस्से से बोला। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, वाकई सर में दर्द है। हया खाइफ होती उठ बैठी और सिरहाने पड़ा दुपट्टा उठाकर ओढ़ने लगी। वो इतनी अचानक अंदर आया था कि वो जो बगैर दुपट्टे की लेटी थी उसके सामने खफत का शिकार हो गई। तो फिर लेटना था तो मेरे कमरे में जाकर लेट जाती, या नीचे मम्मी के कमरे में। यहाँ कोई मुलाजमा ने तुम्हें देख लिया तो फौरन मम्मी से जाकर कह देगी, और तुम जानती हो कि मम्मी हार्ट पेशेंट है, उनको मैं कोई टेंशन नहीं दे सकता। वो उखड़े लहजे में बोला। हया ने हैरत से उसे देखा। वो अपने कमरे में लेटने की बात कर रहा था। पहली रात अपने कमरे से निकालने के बाद भला उसे इजाज़त उसने कब दी थी? उसकी गैर मौजूदगी में हाथों अपने कपड़े भी यहाँ अलमारी में शिफ्ट कर चुकी थी। ऐसे क्या देख रही हो? हया के हैरत से देखने पर वो डपट कर बोला तो वो आहिस्तगी से बोली, अपने कमरे से तो आपने मुझे निकाल दिया था। मम्मी के कमरे में लेटती तो वो लाजमी पूछती कि अपने कमरे में क्यों नहीं लेटती, इसलिए मैं यहाँ। ठीक है ना, अब इजाज़त दे रहा हूँ, दिन को मेरे कमरे में रह सकती हो, सिर्फ रात में तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूँगा। और हाँ, अपना सामान वगैरह यहाँ से उठाकर मेरे कमरे में वापस रखो। मम्मी कभी कभार यहाँ की सफाई करवाती हैं, तो मैं नहीं चाहता सफाई वाली यहाँ तुम्हारा सामान देकर समझ जाए कि तुम यहाँ रहती हो। वो खुश को सपाट लहजे में अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से चला गया। हया कुछ देर सर थामे बैठी रही, फिर उठकर नीचे किचन में आ गई। अपने लिए चाय बनाकर कप लिए वो निकलने ही लगी थी जब वो फिर से आ गया। मुझे कप कॉफ़ी चाहिए, अंदाज हुक्मिया था। हया सर हिलाकर पलटी और अपना कप रखकर कॉफ़ी बनाने लगी। स्टडी में दे जाना, वो ये कहकर चला गया। कॉफ़ी बनने के बाद वो तजब्जुब का शिकार हो गई कि क्या करे। मुलाजमा तो सोने जा चुकी थी, चारों नाचार उसे खुद ही जाना पड़ा। नॉक करके वो स्टडी रूम में दाखिल हुई। कमरे में नीम अंधेरा था। वो आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुई। वो कहीं नहीं था। कप टेबल पर रखकर वो जैसे ही पलटी उसे टकराते टकराते बची। वो बिल्कुल पीछे ही खड़ा था। आंखों में एक अजीब सा नाकाबिले फहम तासुर था। हया की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उनके दरमियान ज़रा सा फासला था जिसे वो समेट गया था, और इतने करीब आ गया था कि उसकी सांसें हया के चेहरे से टकराने लगी थीं, जिनकी तपिश से हया का चेहरा जलने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, मगर उसके पीछे दीवार थी। वलीद हसन ने दीवार के दोनों अतराफ हाथ रख दिए और उसके चेहरे की तरफ झुका। हया की सांसें रुक गईं। उसे ऐसे लगा जैसे वो किस करने लगा हो। कमरे की फिजा बोझल और खामोश थी। हया का दिल उसके कदमों में धड़कने लगा। कॉफ़ी रख दी है, वो सरा सीमेगी सी बोली, मगर वो पीछे हटा नहीं। इसे गहरी नज़रों से देखता रहा, जो बुरी तरह पजल हो रही थी, घबरा रही थी। डर रही हो मुझसे? हया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सांस रोके नज़रें झुकाए खड़ी रही। डरना भी चाहिए तुम्हें मुझसे? उसकी सर्द आवाज़ पर बेख्तियार वो उसे देखने पर मजबूर हुई। उसकी आंखों में अब सर्द मेहरी साफ दिखाई दे रही थी। तुम किसके कहने पर वो फाइल चुराने लाइब्रेरी में गई, ये तो मैं पता चला ही लूँगा, मगर उसके बाद तुम्हारे साथ जो होगा उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वो इंतहाई सफाक लहजे में बोला। हया चंद पल उसे डुबडुबाई निगाहों से देखती रही, फिर गुस्से से बोली,
मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं कोई फाइल चुराने नहीं गई थी। आपको गलत फहमी हुई है। आप ख्वामख्वाह मुझ पर शक कर रहे हैं। अगर आपने कुछ भी मेरे साथ गलत किया ना तो मैं आंटी को बता दूंगी। उसने दू बदू धमकी देने पर वलीद हसन का दिमाग भग से उड़ा। दीवार से हटाकर उसने हया की दोनों कलाइयाँ सख्ती से थामी और उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला, अगर तुमने मम्मी से कोई भी बकवास की ना तो याद रखना तुम्हारा वो हाल करूँगा कि मौत के लिए भी तड़पोगी। अंदाज की तरह लहजा भी इंतहाई दुरुस्त था। हया साकित खड़ी बहते आंसुओं के साथ उसे देखे गई। जब वो चंद पल उसे घूरने के बाद पीछे हट गया, उसके पीछे हटते ही वो तेजी से निकल आई। वो रात भी वलीद हसन की वजह से इसकी रोते हुए गुजरी थी। कई दिन गुजर गए जब एक दिन सुबह नाश्ते की टेबल पर वलीद ने मम्मी को मुखातिब करके कहा, वो अगले हफ्ते 10 दिन के लिए टूर पर लंदन जा रहा है। तुम हया को भी साथ ले जाओ। 2 महीने हो गए हैं शादी को और तुम इसे कहीं घुमाने नहीं लेकर गए। नफीसा बेगम ने फौरन से कहा, कम ऑन मम्मी, मैं आउटिंग पर नहीं जा रहा जो इन मोहतरमा को साथ ले जाऊं। ऑफिस के काम से जा रहा हूं। वलीद ने बमुश्किल लहजे को नॉर्मल रखकर कहा, हाँ तो तुम कौन सा आउटिंग के लिए स्पेशल टाइम निकालने वाले हो भला? तुम्हारे पास तो 100 बहाने होते हैं। मम्मी के लहजे में नाराजगी थी जिसे महसूस करके वो नरम पड़ा। लेकिन मम्मी, इसका पासपोर्ट नहीं होगा ना? उसने बहाना बनाना चाहा। पासपोर्ट का कौन सा मसला है? अगले हफ्ते जाओगे तुम और पासपोर्ट तो तुम एक दिन में ही बनवा सकते हो, मालूम है मुझे। बस अब मैं तुम्हारे मुंह से ना सुनूं। हया तुम्हारे साथ जाएगी और ये मेरा हुक्म है। नफीसा बेगम ने 2 टोक लहजे में कहा। वलीद हसन ने लब फेंच कर उसे देखा जो इस सारी गुफ्तगू में खामोश बैठी खाना खा रही थी। उसे इस लड़की पर जी भरकर गुस्सा आया जिसे ज़रा भी इज्जत नफ्स ना हो। उसने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे नहीं जाना। मम्मी के ऑर्डर के मुताबिक दूसरे दिन पासपोर्ट बनवाने के लिए हया को बुलवाना पड़ा। वापसी पर वो बड़े ख़राब मूड में ड्राइविंग करते उससे बोला, मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ, घूमने फिरने नहीं, जो मम्मी ने तुम्हें मेरे सर पर थोप दिया। उसका लहजा इंतहाई कड़वा कसीला था। हया जो अकेले में नफीसा बेगम को कई बार कह चुकी थी कि वो नहीं जाना चाहती, अब वलीद हसन के सामने उसे इंतहाई बेइज्जती फील हो रही थी कि वो उसे नहीं ले जाना चाहता था, मगर मम्मी के मजबूर करने पर ले जाना पड़ रहा था। मैंने आपसे नहीं कहा कि मुझे ले जाएं। मम्मी ने कहा है उन्हें इनकार कर देना। उसने भी तपे हुए लहजे में जवाब दिया। वलीद ने एक झटके से गाड़ी रोकी और पूरे का पूरा उसकी तरफ घूमकर उसे घूरते हुए बोला, मैंने तुम्हारे सामने बार बार इनकार किया था मगर तुम अपना मुंह सीकर बैठी हुई थी। इसका मतलब यही हुआ कि तुम्हें खुद अरमान है मेरे साथ जाने का? उसके तंज पर हया का चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे कोई अरमान नहीं है जाने का। मैं आंटी से इनकार कर चुकी हूँ मगर उन्होंने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। लेकिन अभी जाकर मैं उन्हें दोबारा कहूँगी कि वो आपको मुझे साथ ले जाने पर मजबूर ना करें। शट अप। खबरदार जो तुमने मम्मी से ऐसी कोई बात करके उन्हें हर्ट किया तो। वो एकदम भड़क कर बोला। हया उसे देख कर रह गई। अजीब इंसान था, एक तरफ कह रहा था इनकार नहीं किया और दूसरी तरफ मना कर रहा था इनकार करने से। वो गुस्से से सुर्ख चेहरा लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। वलीद हसन ने भी फिर मजीद कुछ नहीं कहा और उसे घर ड्रॉप करके वापस चला गया। उसे नहीं पता था कि वहाँ मौसम कैसा होगा, इसलिए कुछ गर्म और कुछ हल्के कपड़े रख लिए। जूते, पर्स, बाकी सामान भी था जिसकी वजह से बैग खासी भारी हो गया था। वलीद ने देखा तो फौरन झड़क दिया, हम कोई 6 महीने के लिए नहीं जा रहे जो इतना सब कुछ ले जा रही हो, कम करो इसे। हया ने चुपचाप आधा सामान निकाल दिया। मम्मी और बुआ ने उन्हें दुआओं में रुखसत किया। जहाज़ में उसे सीट बेल्ट बांधना नहीं आ रहा था जिसे वलीद ने इंतहाई कोफ्त भरे तासुरात के साथ बांधा। जब वो इसका बेल्ट लगा रहा था तो उसने लम्स अपने वजूद पर महसूस करके हया ने सांस तक रोक ली। एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने टैक्सी हायर की जिसने सीधा होटल पहुंचा दिया। हया उसके पीछे पीछे चल रही थी। अपना बैग भी उसने खुद उठाया हुआ था क्योंकि वलीद हसन का अंदाज लाताल्लुक सा था। कमरे में पहुंचे तो वो फ्रेश होने के बाद बेड पर लेट गया, जबकि हया सोफे पर बैठी की बैठी रह गई। उसने एक बार भी नहीं कहा कि तुम भी फ्रेश हो जाओ। वो खुद ही उठी 10 मिनट बाद कमरे में आई
तो लाइट भी डिम हो चुकी थी। वो शायद गहरी नींद में था। हया भी आहिस्तगी से सोफे पर लेट गई। न जाने कौन सा वक्त था जब उसकी आंख खुली। वो कमरे में नहीं था, वॉशरूम का दरवाज़ा भी लॉक नहीं था। हया बुरी तरह से घबरा गई कि उसे सोता छोड़कर कहाँ चला गया। वो कमरे के वस्त में परेशान खड़ी थी जब दाएं तरफ वाली दीवार से पर्दा सरका और वो अंदर आया। हया पूरी तरह से आंखें खोलकर उसे देखने लगी। इस तरफ कोई कमरा या बालकनी थी? दरवाज़ा बंद कर लो, वो उसे कहता बाहर निकल गया। हया दरवाज़ा बंद कराई और पर्दा सिरकाया जहाँ से वो बरामद हुआ था। बेख्तियार मुंह से वाव निकला। शीशे की बालकनी और बालकनी में से होटल का बेहद खूबसूरत नज़ारा। काफ़ी देर वो उस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होती रही और फिर कमरे में आकर सोफे पर बैठ गई। 1 घंटा बीत गया, वो कमरे में नहीं आया तो हया को परेशानी होने लगी। फिर न जाने कितना वक्त बीता था। जब वो आया तो हया ने उठकर दरवाज़ा खोला। इतनी देर क्यों लगा दिया आपने? परेशानी में बेख्तियार हया के मुंह से निकला। वलीद ने अचंभे से उसे देखा। एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारा पाबंद नहीं हूँ कि बता कर आऊँ जाऊँगा। उसके गरजने पर हया का चेहरा उतर गया। वो खामोशी से सोफे पर बैठी। वलीद वॉशरूम चला गया और कुछ देर बाद निकला तो बेड से टेक लगाकर बैठा और लैपटॉप खोल लिया। हया मुंतज़िर ही रही कि वो उसे खाने का पूछेगा। इतनी देर हो गई थी, अब तो भूख से भी बुरा हाल हो रहा था। जब मज़ीद कुछ देर गुजरी तो हया को यकीन हो गया कि ये शख्स खाने का नहीं पूछेगा, तो झिझकते हुए उसने पुकारा, मुझे भूख लगी है। वो आहिस्तगी से बोली। तो वलीद ने अबरू उचकाकर देखा। ये इंटरकॉम पड़ा है, ऑर्डर करो। उसने फिर से निगाहें अपने लैपटॉप की तरफ मरकूज कर ली। जब काफ़ी देर गुजर गई, हया अपनी जगह से ना हिली तो लब भेंचे उसने खुद ही इंटरकॉम पर खाना ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद वो फिर से बालकनी में आ खड़ी हुई और रोशनियों के नज़ारे देखने लगी। कमरे में वलीद के फ़ोन पर किसी से बात करने की आवाज़ आ रही थी। वो शायद मम्मी से बात कर रहा था। कुछ देर बाद उसने बालकनी में आकर फ़ोन हया को थमा दिया। मम्मी तुमसे बात करना चाहती हैं। वो उसके सर पर ही खड़ा हो गया। हया ने बमुश्किल चंद फिक्रे बोलकर कॉल बंद कर दी। बस करो, कमरे में आओ, अब आधी रात हो गई है, ठंड मज़ीद बढ़ जाएगी। ऐसा ना हो कि बीमार होकर मेरे गले पड़ जाओ। नागवारी से कहता वो कमरे में चला गया तो हया को भी मजबूरन कमरे में आना पड़ा, क्योंकि ठंड वाकई ज़्यादा हो रही थी। दूसरी सुबह नाश्ते के बाद उसने हया से कहा, काम से जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा, अपने लिए खाना ऑर्डर कर देना और अकेले कमरे से बाहर ना निकलना। हया ने चुपचाप उसकी हिदायत पर सर झुका दिया। फिर अगले चंद दिन भी इसी तरह गुजरे। वो सुबह का गया, शाम को लौटता और हया कमरे में बंद रह रह कर थक चुकी थी। इसीलिए उसने एक दिन उसकी हिदायत को नज़रअंदाज करते कमरे से निकल आई और होटल से भी बाहर आ गई। होटल के दाएं तरफ दरियाए टीम्स का किनारा था, जिस पर लोगों का रश था। वो भी वहीं आकर एक खाली पड़े बेंच पर बैठ गई। अभी उसे बैठे थोड़ी देर हुई थी जब कोई स्याह फाम उसके करीब आकर बैठा। हया कोने में सिमट गई। हाय बेबी। उसने हया की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो घबरा कर उठ खड़ी हुई और जाने के लिए कदम बढ़ाए, जब उस स्याह फाम ने अचानक हया का हाथ पकड़ लिया और अंग्रेजी में कहा, कहाँ जा रही हो? जितने पैसे कहोगी उतने दूंगा। उसकी बात और हरकत पर हया सुन पड़ गई। वो उसे कोई जवाब नहीं दे पाई थी जब अचानक वहाँ न जाने कहाँ से वलीद आ गया। हाथ छोड़ो इसका, उसने सर्द लहजे में स्याह फाम से कहा तो उसने मुस्कुराते हुए हाथ छोड़ दिया और वलीद से बोला, तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करेगी क्या? वलीद ने कोई जवाब नहीं दिया और साकित खड़ी हया का हाथ पकड़कर होटल की तरफ बढ़ गया। उसकी गिरफ्त में सख्ती थी, चेहरे के तासुरात पथरीले थे, जिससे लग रहा था कि हया की खैर नहीं। उसका दिल कांप उठा। उसने लिफ्ट में भी इसका हाथ नहीं छोड़ा, सीधा कमरे में ले आया और बेड पर धकेलने के बाद पलटकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जब मैंने मना किया था तो क्यों निकली कमरे से बाहर? वो बोला नहीं, गुर्राया था। हया सहम कर उसे देखने लगी। बहुत शौक है लोगों के साथ रातें गुजारने का। उसके इस नोकीले तंज पर हया की रूह भी बिलबिला उठी। जब्त बस यहीं तक था। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो लब भेंचे कुछ देर तो उसे रोते देखता रहा, फिर दुरुस्त लहजे में बोला, बंद करो ये रोना धोना, मुझ पर आंसू असर नहीं करने वाले, समझी?
तुम्हारे नासुओं वाले मासूम चेहरे की असलियत मैं जानता हूँ, वो तनफ्फुर से बोला तो हया को मजीद रोना आया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने आंसुओं पर काबू पाया और बेड से उठकर सोफे पर जाकर लेट गई। रात न जाने किस वक्त नींद आई। सुबह आंख खुली तो जिस्म तप रहा था। वलीद कमरे में नहीं था, शायद दरवाज़ा बाहर से लॉक करके गया था कि वो बाहर ना निकल सके। उसका नाश्ता मेज़ पर पड़ा था, मगर हया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर चाय ही बना लेती। यूं ही पड़े पड़े दोपहर हो गई। वो आया और उसे सोते देखकर तंजिया बोला, आपकी नींदें अभी ख़त्म नहीं हुई? तैयारी कर लो, आज रात की फ़्लाइट से जाना है। हया ने उसकी बात का ना तो कोई जवाब दिया और ना ही उठी। वो वॉशरूम से निकला तो इसे हनूस लेटे देखकर बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? फिर उसकी नज़र नाश्ते की ट्रे पर पड़ी जो जूं की तू रखी हुई थी। वो चौंका और किसी ख्याल के तहत आगे बढ़कर उसका माथा छुआ तो ठुठक गया। इसे तो बुखार था। बताया क्यों नहीं कि बुखार है? झुंझलाकर बोला। हया बामुश्किल उठी और कमज़ोर आवाज़ में बोली, नहीं ठीक हूँ मैं। वलीद ने अनसुनी करते बैग से टैबलेट का पैकेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया और साथ ही ग्लास में पानी डाल कर दिया। वो पीने लगी थी जब उसे रोक दिया कि तुम खाली पेट हो, पहले कुछ खा लो। फिर उसके लिए ब्रेड और दूध मंगवाया जिसे हया ने बामुश्किल हलक से नीचे उतारा। टैबलेट लेकर वो फिर सो गई थी। फिर जब शाम को आंख खुली तो बुखार खासा कम हो चुका था। उठकर अपने बैग का जायज़ा लिया, वो भी रेडी हो चुका था। कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हया के लिए ये सफ़र महज सफ़र ही रहा। घर जाते हुए रास्ते में ही वलीद ने वार्न कर दिया था कि खबरदार जो मम्मी से मेरी कोई शिकायत लगाई तो। वो ना भी कहता, वो तब भी ऐसा ना करती। दिन गुजरते गए। वलीद हसन का सर्द रवैया बरकरार रहा। उसकी नज़र में अभी तक हया का किरदार मशकूक और नाकाबिले भरोसा था। उनके दरमियान सर ताल्लुकात का अंदाज़ा कुछ कुछ नफीसा बेगम को हो गया था। इसलिए एक दिन उन्होंने वलीद को बुलाकर सरजनिश की। माँ के सामने तो वो चुप रहा, मगर बाद में दंदनाता हुआ हया के सर पर पहुँच गया। वो अभी नहाकर निकली थी, बालों से पानी टपक कर कपड़ों को गीला कर रहा था। उसने सही से खुद को कवर भी नहीं किया था जब वलीद हसन मुश्तइल तासुरात के साथ उस पे सर पर जा पहुंचा। तुमने मम्मी से क्या कहा है? हया ने नासमझी से देखा। मैंने तो कुछ नहीं कहा। कहने के साथ ही उसने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाना चाहा, जिसे वलीद ने झपट कर दूर फेंक दिया। हया हैरत से उसे देखकर रह गई। वो उसके बेहद करीब आता उसे शानों से दबोच कर बोला, तुमने कुछ नहीं किया तो मम्मी को क्या ख्वाब आया था कि हमारे बीच ताल्लुकात ठीक नहीं है? उसकी सख्त झुलसा देने वाली सांसें हया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। ज़रूरी नहीं कि मैंने कहा हो, उन्होंने खुद ही महसूस कर लिया होगा। सपाट लहजे में कहते उसने वलीद के दोनों हाथ अपने कंधों पर से हटाने चाहे, मगर वो दबाव मज़ीद बढ़ा गया। हया की दर्द से सिसकी निकली जिसे वो इग्नोर कर गया। प्लीज़ छोड़ें। उसकी आंखों से आंसू गिरते देखकर वलीद ने उसके कंधों से हाथ हटाकर ताहम उससे सख्त लहजे में वार्निंग देना ना भूला। उसके जाने के बाद वो बेड पर लेटकर आंसू बहाने लगी और फिर रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई। जब जागी तो सर भारी हो रहा था। वो चाय पीने की गर्ज से नीचे चली आई। ड्राइंग रूम से बातों की आवाज़ आ रही थी। मुलाजमा चाय की ट्रॉली अंदर ले जा रही थी। हया के पूछने पर बोली, नफीसा बाजी की खाला आई हैं। हया ने उनको जाकर सलाम किया तो खूब मोहब्बत से मिली और इसे अपने साथ बिठा लिया। इसके सुर्ख हुए चेहरे को गौर से देखकर बोली, तबीयत तो ठीक है बेटा? जी बस वो सर भारी हो रहा है, वैसे ठीक हूँ। हया ने उनको जवाब देते मुलाजमा से चाय का कप लिया। खाला मम्मी से मुखातिब होकर बोली, नफीसा कितना अरसा हो गया तुम्हारे बेटे की शादी को? मम्मी ने 5वें महीने के कहने पर खाला बुलंद आवाज़ और खुशी से खनकते लहजे में बोली, फिर मुबारक हो नफीसा, तुम दादी बनने वाली हो। इस बात पर जहाँ नफीसा बेगम के चेहरे पर रौनक दिखने लगी, वहाँ हया के हाथ से चाय का कप गिरते गिरते बचा। उसी वक्त वलीद अंदर आया तो खाला ने उसे भी मुबारकबाद देते कहा, मियाँ तुम बाप बनने वाले हो, जाओ अपनी बीवी का किसी लेडी डॉक्टर से चेकअप कराओ, इसकी तबीयत सही नहीं। बुआ की इस बात पर वलीद ने बेसाख्ता हया की तरफ देखा। हया भी उसकी तरफ ही देख रही थी। नज़र मिलने पर वो बुरी तरह गड़बड़ाकर नजरें झुका गई।
خالہ اب اسے احتیاطیں بتا رہی تھی جن کو سنتے ہی وہ خفت اور شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں خالہ، میرے صرف سر میں درد ہے۔ بڑی مشکل سے وہ کہنے کے قابل ہوئی اور برتن رکھنے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے بعد تو ممی کی زبان پر بھی یہی بات چڑھ گئی۔ اٹھتے بیٹھتے وہ دونوں کے سامنے پوتے پوتیوں کی بات کرنے لگتی، جسے سن کر دونوں ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگتے۔ حیا تو خود کو زمین میں گڑا ہوا محسوس کرتی تھی۔ ایک رات جب وہ نماز کے لیے وضو کر کے کمرے میں آئی تو اچانک ولید آ گیا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، فری ہو کر میرے کمرے میں آنا، کچھ کام ہے۔ حیا کا دل گھبرانے لگا۔ اب یوں ہی ہوتا تھا، وہ جب بھی مخاطب ہوتا اس کا دل گھبرانے اٹھ لگتا کہ نہ جانے اب کیا کہہ دے۔ نماز بھی وہ مکمل توجہ سے نہ پڑھ سکی۔ دل نہیں کر رہا تھا کہ اس کے کمرے میں جائے، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی یوں ہی ہیئر برش کرنے لگی۔ جب اس نے دوبارہ کمرے میں جھانکا، ابھی تک فری نہیں ہوئی تم؟ وہ دروازے میں کھڑا عجیب نگاہوں سے دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ جی آ رہی ہوں، وہ گڑبڑا کر بولی اور گہری سانس لے کر اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، ولید جو کمرے کے وسط میں اس کا منتظر کھڑا تھا، آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ حیا کا دل اچھل کر حلق میں آیا، مگر چہرے کے تاثرات پر قابو پا لیا کہ وہ اس کا شوہر تھا۔ 100 دروازہ بند کرنے کا کیا مسئلہ تھا بھلا؟ آؤ بیٹھو، وہ اسے نرم لہجے میں بیڈ پر بیٹھنے کا کہہ رہا تھا۔ حیا کو اس کے لہجے کی نرمی پر حیرت کا جھٹکا لگا، تاہم وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ وہ بھی اس کے قریب بیٹھا، اتنا قریب کہ حیا نے غیر محسوس انداز میں دور سے رکھنے کی کوشش کی، مگر وہ غافل نہیں تھا، اس کا ہاتھ تھام گیا۔ ممی کو پوتے پوتی دیکھنے کی خواہش ہے اور میں ممی کی اس خواہش کو رد نہیں کر سکتا۔ ہمارے بیچ رشتہ جیسا بھی صحیح، ممی کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تمہیں مجھ سے تعاون کرنا پڑے گا، وہ نارمل لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر حیا حق دک رہ گئی۔ ولید حسن نے اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ نائٹ بلب آن کرتے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ ساکت سی اسے دیکھے گئی۔ تکیے پر اس کا سر رکھتے وہ اس کی گردن پر جھکا۔ حیا نے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑتے خود پر بمشکل قابو پایا، ورنہ اس کا دل کر رہا تھا وہ اسے جھٹک کر باہر جائے، مگر ایسا کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اچانک ولید کا فون بجنے لگا۔ جھنجھلاتے ہوئے وہ فون کی طرف متوجہ ہوا تو حیا نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تیزی سے بیڈ سے اٹھتی وہ دروازہ کھولتے باہر نکل آئی۔ دل میں خوف اتنا تھا کہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے نیچے ممی کے پاس آ گئی۔ وہ سو رہی تھی، پاس پڑے دوسرے بستر پر بوا لیٹی تھی۔ وہ بنا آہٹ کے صوفے پر جا کر لیٹ گئی۔ ساری رات جاگتی رہی اور صبح ان کے جاگنے سے پہلے ہی کمرے سے نکل آئی، مگر اپنے کمرے میں پھر بھی نہیں گئی۔ کافی دیر لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ ناشتے کی ٹیبل پر ولید حسن سے سامنا ہوا تو اس نے جن سرد غسیلی نگاہوں سے اسے دیکھا، حیا کے وجود میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ پھر کئی دن اس کے خوف میں گزرے، مگر ولید حسن کی جانب سے دوبارہ پیش قدمی نہیں ہوئی۔ شاید اسے بھی اپنی انا عزیز تھی۔ نفیسہ بیگم کو اپنی بہن سے ملنے دوسرے شہر جانا تھا، بوا بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ ولید حسن کے ساتھ اکیلے رہنے کا خیال حیا کے دل دہلائے جا رہا تھا۔ ممی کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتا۔ مگر ممی اور بوا کے جانے کے فوراً بعد اس نے حیا سے کہا، اپنا سامان پیک کر لو، جب تک ممی اور بوا گھر نہیں آ جاتی تم اپنی سسٹر کے گھر رہو۔ یہ سن کر حیا کے پورے وجود میں خوف کی سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آپ ہی کے گھر رہنا یہاں اس مسٹر کھڑوس کے ساتھ رہنے سے زیادہ خطرناک تھا، مگر وہ یہ بات چاہ کر بھی ولید حسن سے نہیں کہہ سکتی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کے حکم پر بیگ لے کر چلی گئی۔ نفیسہ بیگم کا ارادہ 15-20 دن رہنے کا تھا، مگر خلاف توقع وہ 1 ہفتے بعد ہی آ گئی۔ ملازمہ سے جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے جانے کے فوراً بعد ولید نے حیا کو اس کی بہن کے گھر بھجوا دیا تھا تو انہوں نے ولید کی خوب خبر لی، کیونکہ شادی کے موقع پر احمد کی ماں نے دبے دبے لفظوں میں حیا کی بہنوئی اور ساس کے حیا کے ساتھ رویے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اسی لیے وہ ولید پر غصہ ہوئیں اور کہا فوراً جاؤ حیا کو لے کر آؤ۔ ولید حسن نے ڈرائیور کو بھیجنا چاہا، مگر نفیسہ بیگم نے کہا خود جاؤ، تو مجبوراً اسے خود ہی جانا پڑا۔ وہ جیسے ہی دروازے پر پہنچا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا
वो सामने वाले कमरे से बदहवासी की आलम में निकलती उससे आ टकराई। बगैर दुपट्टे और जूतों के, बिखरे बाल, उड़ी उड़ी रंगत, आंसुओं से तर चेहरा। वलीद हसन ने बेहद हैरत से उसे देखा और फिर नज़र फहद पर पड़ी, जिसके हाथ में हया का दुपट्टा था और चेहरे पर जो शिकारियों जैसे तासुरात थे। उसे वलीद को समझने में देर न लगी कि मामला क्या था। वो खौफ से कांपती हुई उसके पीछे आ खड़ी हुई, जबकि फहद का चेहरा खौफ से फक हो गया। एक गुस्से और इश्ताल का बगोला था जो वलीद हसन के दिमाग में भड़का था। आओ देखा ना ताओ, वो फहद पर पुल पड़ा। उसके दराज कद, फुट बॉडी बिल्डर वजूद के सामने फहद जैसा पिस्ता कद आदमी ठहर भी ना सका। वलीद हसन उसे घसीटते हुए अंदर ले गया और पथराई निगाहों से देखती हया से रस्सी मांगी। अगले 5 मिनट में वो उसे रस्सी से बांधकर अपनी टीम को फ़ोन पर वहां पहुंचने का ऑर्डर दे चुका था। ज़मीन पर गिरा उसका दुपट्टा उठाकर इसकी तरफ बढ़ाते वलीद ने उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। फहद को अपने साथियों के हवाले करते वो अपनी गाड़ी में आया। हया पिछली सीट पर दुबकी बैठी आंसू बहा रही थी। वलीद का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। उसने रास्ते में एक लफ्ज़ भी हया से नहीं कहा, चुपचाप उसे घर छोड़ दिया। ताहम जब वो गाड़ी से उतर रही थी तो सिर्फ इतना कहा, मम्मी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए वो पिछले दरवाजे से सीधी अपने कमरे में आई। पहले अपना होलिया और अपने तासुरात नॉर्मल किए, फिर मम्मी के कमरे में गई। बज़ाहिर वो उनसे और बुआ से नॉर्मल अंदाज में बातें करती रही, मगर दिलो दिमाग पथराए जा रहा था। जहाँ अपनी इज़्ज़त के बचने पर वो अब तक बेयकीन थी, वहाँ वलीद के सामने फहद की असलियत आ जाने पर खुद को ज़मीन में गड़ा हुआ महसूस कर रही थी। आगे के हालात को सोचते उसका परेशानी से बुरा हाल था। न जाने वलीद हसन फहद का क्या हाल करने वाला था, और सबसे ज़्यादा उसे ये सोच सोच कर रोना आ रहा था कि अब वो उसका सामना कैसे करेगी। न जाने उसका रिएक्शन क्या होगा। दिल मुसलसल हौलता रहा। अल्लाह अल्लाह करके वलीद हसन की गाड़ी रात 12 बजे घर में दाखिल हुई। हया मम्मी के पास बैठी हुई थी। वलीद की आदत थी वापस आने के बाद वो अपने कमरे में जाने के बजाय मम्मी के कमरे में जाता। इसीलिए हया किचन में खिसक गई और खौफ से धक धक करते दिल के साथ उसके रिएक्शन को सोचती रही। अभी उसे कमरे में गए 10 मिनट हुए थे जब मुलाजमा ने उसे वलीद हसन का पैगाम दिया कि वो उसे अपने कमरे में बुला रहा था। हया की हालत मरने वाली हो गई। मुलाजमा के जाने के बाद 5 मिनट तक वो यूं ही खड़ी रही, फिर आहिस्ता कदमों से चलकर ऊपर आ गई। दरवाजे को हल्का सा नॉक करने के बाद उसने डरते डरते अंदर कदम रखा। वो सोफे पर बैठा इसी का इंतज़ार कर रहा था। हया निगाहें झुकाए उसे फासले पर जा खड़ी हुई। दिल की हालत ऐसी थी गोया अभी कदमों में आ गिरेगा। वलीद हसन ने अपनी संजीदा आवाज़ में उसे बैठने को कहा। वो ना चाहते हुए भी सोफे पर टिक गई। वो कुछ बगौर उसका सर्द पड़ता चेहरा देखता रहा, फिर बोला, मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। कब से वो तुम्हें हैरेस कर रहा था और अपने मकसद में वो किस हद तक कामयाब हुआ? वलीद हसन की आवाज़ संजीदा ज़रूर थी मगर सख्त नहीं थी। हया चंद लम्हे चुप रही, फिर आंसुओं के दरमियान शुरू से लेकर सब बताती गई कि किस तरह कब से वो उस पर बुरी नज़र रखता था और उसकी आप ही उसकी हिफाजत करती रही। वो बात ख़त्म करके सिसकियाँ लेने लगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वलीद हसन का चेहरा ज़ब्त की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। हया ने कोई जवाब नहीं दिया, सिसकियों के साथ रोती रही। वो कुछ देर लब भेंचे उसे देखता रहा, फिर यकदम उसे अपने हिसार में लेता सीने से लगा गया। सहारा पाते ही वो ऐसे टूट कर बिखरी कि वलीद हसन को संभालना मुश्किल हो गया। वो सारी रात वलीद के हिसार में से सकती रही और वो अपने पुराने गुजरे रवैये पर माजरत करता रहा। दरअसल मेरी गैरत ये गवारा नहीं कर रही थी कि मैं एक ऐसी लड़की को अपनाऊं जो जिस्म फरोशी के इल्ज़ाम में एक रात जेल रही हो। हालांकि मैं पता करवा चुका था कि तुम बेकसूर हो, इस धंधे के बारे में कुछ नहीं जानती थी, फिर भी मेरा दिमाग तुम्हें कबूल करने को तैयार नहीं था। उस दिन लाइब्रेरी में मुझे तुम पर ख्वामखा गुस्सा आ गया। हालांकि मैं जानता था कि तुम वहाँ फ़ाइल के लिए नहीं गई थी, क्योंकि वो फ़ाइल प्रॉपर्टी की थी, किसी केस की नहीं। बस मैंने तुम पर अपनी भड़ास निकालने के लिए फ़ाइल चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया। आज जब मैंने तुम्हें अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए खौफजदा होकर भागते देखा तो मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ गया कि तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी तो मैंने ली थी, निकाह नामे पर साइन करके। फिर कैसे मेरी मौजूदगी में किसी ने तुम पर बुरी नज़र डालने की कोशिश की? उस फहद को तो मैं छोड़ूंगा नहीं।
وہ افسردگی سے کہتے۔ آخر میں اس کا لہجہ خطرناک ہوا۔ حیا ہنوز آنسو بہاتی رہی۔ بس تم رونا بند کرو، اب صبح ہونے والی ہے۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ماتھے پر لب رکھتے بولا۔ حیا نے سکون سے اس کے سینے پر سر رکھتے آنکھیں موند لی۔